हेलो एवरीवन, 23 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पेस डे। और ये स्पेस डे हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि आज के दिन ही 23 अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 ने मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। और ऐसा करने वाले हम वर्ल्ड की 4th कंट्री और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाले वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन गए थे। और चंद्रयान 3 ने जो सॉफ्ट लैंडिंग करी, इसी अचीवमेंट को शो करने के लिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इवन इसरो का जो इस ईयर का स्लोगन है, दैट इज टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून। इसरो इज द इंडिया सुपर स्पेस पावर एंड इंडिया आने वाले टाइम में एक स्पेस सुपर पावर बनने वाला है, विच शोज दैट कि इंडिया सिर्फ स्पेस में ही नहीं, बाकी अदर वेज में, लाइक हम AI में, हम एग्रीकल्चर में, हम वेदर फोरकास्टिंग में, यहाँ सब एरियाज में हम स्पेस रिलेटेड अपने मिशंस जो हैं और उनका आउटकम वो प्राउडली जो है वो यूज करने वाले हैं। सो इन दिस लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पेस प्रोग्राम जो इस ईयर में रहे हैं और अपकमिंग जो स्पेस प्रोग्राम आने वाले हैं। सो टुडेज लेक्चर इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द इसरो and the ISRO's program related to the Gaganyaan, Chandrayaan, the Aditya L1, all these. So it was the time period of the 13th July when the Chandrayaan 3 it was launched from the Earth and 23rd August जब चंद्रयान 3 ने मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। अब उसी दिन से हमने जो है इस नेशनल स्पेस डे को सेलिब्रेट करना जो है स्टार्ट किया। So that time, this time basically we are having the national space celebration which is going to be for the 3 to 4 days, which shows that the dedication of the Indian scientists, the dedication of the ISRO. So let me just tell you, we are having the discounted time period from the 18th to 25th August. You can avail this discount for the GS Foundation course in online as well as in the offline batches. So this is the number which is available on the screen. You can call over this number and you can get inquiry regarding this course. So this course is going to be the comprehensive course which would include the pre plus mains plus interview preparation. तो आपको one stop solution के तौर पर सभी चीजें जो है यहाँ पर मिल जाएंगी। So since the Chandrayaan 3, what has India's space program been up to? Today in this lecture we are going to explain related to that. So as you can see, this is the kind of spacecraft which is basically holding the Chandrayaan 3. So this Chandrayaan 3 program, it is a program which is basically showing the space part, and this space part is being launched from the Sriharikota. So we are basically having 3 basic launching set जहाँ से हम अपने spacecraft को launch करते हैं। अब one is basically having the Satish Dhawan Space Center, one is at the Sriharikota. So the successful landing of the Chandrayaan 3, it shows that in future for the Gaganyaan, like जहाँ हम अपने व्योममित्रास को स्पेस में लेकर जाएंगे, तो we can think of कि उस बेसिस पे हम उस सॉफ्ट लैंडिंग को, चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग को हम गगनयान के लिए भी प्रोस्पेक्टिव वे पर हम उसे नेक्स्ट जो अब हमारा आफ्टर द चंद्रयान 3 जो प्रोग्राम रहा, वो हमारा प्रोग्राम रहा आदित्य L1. So Aditya L1, as the name suggests, this program is dedicated to explore the area of the sun. So there are so many rays of the sun and sun का जो outer layer है, basically the chromosome and the chromosomal arrays, तो हम उसको जो है अच्छे तरीके से like just to grab the solar flares, just to grab the magnetic field of that area, उसके लिए हमने जो है ये अपना प्रोग्राम सेटअप किया है। L1, it suggests the Lagrange point. So there are 5 Lagrange point in the total space, which shows that कि इन एरियाज में जो ग्रेविटी है, उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो नहीं होता है। So it is the point L1, Lagrange point is the point which shows that there is some sort of point जो ये शो करता है कि इस एरिया में किसी भी तरीके का ग्रेविटी जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। और ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आपका स्टैटिक, आपका जो सॉर्ट ऑफ आपका जो प्लेन होता है वो स्टैटिक जो है वो वहां पर रह जाता है, फ्यूल की बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है। सो एज आई एम टेलिंग यू, देयर आर 5 प्लेसेस इन द अर्थ, sorry, in the space
where you can see that this is the sun, this is the earth. In the total space we are having 5 points, that is the L1, L2, L3, L4 and L5. As you can see, L1 is the point which is nearest to the sun. So if you want to do the study of the sun, तो आप L1 point पर रह के study करोगे. If you want to study the whole space, तो आप L2 point पर रहकर स्टडी करोगे. Why? Because अर्थ का साइज जो है वो छोटा है और यहाँ से अर्थ से सन तक you can study properly. L3 जो है वो कंप्लीट स्पेस को स्टडी नहीं कर पाएगी, मीन्स वो अर्थ को स्टडी नहीं कर पाएगी. द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि जो आपका सन है वो आपका साइज में बड़ा है तो वो अर्थ को सॉर्ट ऑफ ढक लेता है. इस वजह से अर्थ की यहाँ पर स्टडी नहीं हो पाती है, पूरे स्पेस की भी नहीं हो पाती है. अब अगर आप अपर रीजन से स्टडी करना चाहते हो देन यू वुड हैव द L4 एंड द L5. बट द पॉइंट विच इज essential to study the sun is the L1 point and that's why हमने इसी पॉइंट पर आदित्य L1 जो है उसे प्लेस किया है. अब ये ग्रेविटेशनल पुल से अफेक्ट नहीं करेगा, इट वुड स्टडी द सन विद द नियरेस्ट विजन एंड वहां सन का जो आउटर लेयर है उसके बारे में हम जो है कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे. सो दिस इज बीइंग लॉन्च्ड, हम जो है इसको लॉन्च कर चुके हैं, सक्सेसफुल जो है ये हमारा लॉन्च हो चुका है. सो इन द September 2, 2023 में ये सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया है. थ्रू द पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमने ये जो है हमने लॉन्च किया था. इन द लॉन्चिंग बेसिस पे हमारे पास देयर आर सम सॉर्ट ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल. So some are the retired launching vehicle, which is basically the satellite launch vehicle and augmented satellite launch vehicle. We have some current जो हमारे अभी यूज हो रहे हैं, that is the PSLV. PSLV is considered as the workhorse of the ISRO. And in the PSLV के केस में हमारा ये फर्स्ट ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल था जिसमें लिक्विड फ्यूल जो है वो यूज हुआ. So PSLV is having the 4 stages. In which 2 stages we are using the solid fuel and in 2 stages we are using the liquid fuel. Other than that we are having the 2 variant of the GSLV Mark II and the GSLV Mark III. The difference between these two is हमारा जो GSLV Mark III है that is completely indigenous built up, जिसमें हमारा जो फाइनल जो टर्मिनल स्टेज है that is being using the cryogenic fuel. The second stage is using the semi cryogenic fuel and the third one stage जो है वो हमारा नॉर्मल जो हमारा GSLV Mark II में था वैसा ही हमारा रहा है. नेक्स्ट हमारा आता है the fourth one that is the SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि हाल फिलहाल में हमने जो है उसका 3rd नंबर का सक्सेसफुल फ्लाइट जो है वो लिया है. Other than that we are having some upcoming project as well in terms of the launching vehicle and the first one that is the reusable launching vehicle. So basically होता क्या है, as you can see this satellite, तो सैटेलाइट में क्या होता है, सैटेलाइट में वेरियस स्टेजेस होती है. जैसे हमने देखा PSLV में we are having 4 stages and in the GSLV we are having 3 stages. So here what you can see is here you can कि आपका जो लास्ट स्टेज होता है, लास्ट स्टेज के पास आपका जो है पेलोड रहता है. ठीक है, लास्ट स्टेज के पास आपका पेलोड रहता है. पेलोड वो पार्ट होता है जिसमें आपका एक्चुअली सैटेलाइट रहता है. अब बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे स्टेज से आपका फ्यूल यूज होता जाता है तो ये स्टेजेस से जो है अपार्ट होती जाती है, अलग होती चली जाती है. जैसे ही फर्स्ट जो है स्टेज का स्ट्रेप्सोन का यूज हुआ, स्ट्रेप्सोन हट जाएंगे, फर्स्ट स्टेज का फ्यूल यूज हुआ वो हट जाएगा, तो आपका ये साइज में हल्का होता रहता है. एज वी नो द PSLV इट कैन कैरी दैट मच वेट. SSO में एंड LEO में, लो अर्थ ऑर्बिट में 1750 kg तक का पेलोड ये उठा सकता है. अब रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू हम इसको यूज करना चाह रहे हैं, वी आर थिंकिंग कि जो हमारा ये पेलोड कैपेसिटी वाला ये जो हमारा पार्ट है हम टर्मिनल स्टेज में इसको यूज कर पाए. मींस जैसे प्लेन हमारा जो है आ जाता है वापस, वैसे ही ये लॉन्चिंग व्हीकल हमारे सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ने के बाद इस टर्मिनल फेज को लेकर वापस जो है अर्थ के ऊपर ये सॉफ्ट लैंडिंग कर ले.
ये हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। इसके अलावा वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव द गगनयान विच इज गोइंग टू बी द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, तो वो भी हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट रहने वाला है। सो लेट्स सी वो हम जो है वी हैव द एक्सपेक्टेशन लाइक कि 2025 के बिगनिंग में या तो हम 2026 के बिगनिंग में अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है उसको लॉन्च कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी आदित्य L1। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है बेसिकली अभी हमने ट्राई किया था, टेस्ट किया था गगनयान का टेस्ट व्हीकल। सो दिस गगनयान का टेस्ट व्हीकल ये किस तरीके से हेल्प कर रहा है। अभी जैसे हमने समझा कि हमारा जो टर्मिनल स्टेज होता है दिस वन, तो ये जो टर्मिनल स्टेज होता है, इस टर्मिनल स्टेज में, ठीक है, सो ये जो हमारा टर्मिनल स्टेज होता है, इन दिस टर्मिनल स्टेज हमारा यहाँ पर पेलोड रहता है। तो इन केस ऑफ गगनयान क्या होने वाला है कि हमारा इस तरीके का ये जो है, ठीक है, इस तरीके का हमारा जो है एक ये हमारा क्रू मॉड्यूल रहेगा जहां पर हमारे 3 क्रूज जो है वो बैठेंगे और ये हमारा सर्विस मॉड्यूल रहेगा। अब जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे उस दौरान हम क्या चाहते हैं, उस दौरान हम चाहते हैं कि हमारा ये सेपरेट हो जाए क्रू मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल, जिससे कि हमारे क्रू मॉड्यूल बे ऑफ बंगाल में सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए पैराशूट के थ्रू। अब इनको सेपरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको सेपरेट करने के लिए ही हमने टेस्ट व्हीकल का टेक्निक जो है वो हमने यूज किया था। दिस इज द फर्स्ट अबॉर्ट मिशन रहा था, अक्टूबर 21 में हमने लॉन्च किया था, सो दैट हम ये देख पाए कि हमारा क्रू एस्केप सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, कि जैसा हमारा ये पेलोड है क्रू मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल, क्या ये एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अर्थ पर पहुंचने से पहले ये सेपरेट डी बूस्ट हो जाएगा, हमारा क्रू मॉड्यूल सेपरेट हो जाएगा और फिर हमारे इस क्रू मॉड्यूल में से पैराशूट के थ्रू ये जो है अपना लैंड करेगा और फिर इससे हमारे जो इससे हमारे जो व्योममित्रास हैं वो हमारे स्पेस ह्यूमन स्पेस पर्सन वो निकल पाए। सो ये हमने जो है किया था, सक्सेसफुल ये हमारा रहा है। ये क्रू मॉड्यूल जो है ये टेस्ट एंड रिकवर किया था इंडियन नेवी वेसल INS शक्ति ने, तो ये प्रॉपर तरीके से कर लिया गया था। सो दैट्स हाउ वी कैन थिंक ऑफ कि ये भी हमारा सक्सेसफुल रहा है। सो वी आर गोइंग टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग मॉडल। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द एक्सपोसेट। एक्सपोसेट ये हमारा एक तरीके का एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट रहा है। जनवरी 1, 2024 में ये हमने लॉन्च किया था। अब ये प्रोग्राम हेल्प करेगा हमें टू स्टडी द रेडिएशंस एंड हाउ द रेडिएशंस दे आर पोलराइज्ड एंड इट वुड आल्सो हेल्प अस टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ रेडिएशन इन द स्पेस। वी जस्ट वांट टू स्टडी कि क्या सभी जो रेडिएशंस है वो सिर्फ आपके सन से ही आती है या देयर आर सम अदर रीजंस एज वेल। नेक्स्ट इज ये जो हमारा एक्सपोसेट है ये वर्ल्ड का सेकंड नंबर का है, क्योंकि इससे पहले आईपेक्स जो है वो नासा ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो है अभी हाल फिलहाल में 2 एक्सपोसेट जो है वो ऑन बोर्ड है, एक्सपेक्ट एंड द पोलिक्स। सो ये भी हम जो है सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए हैं। इट वुड हेल्प अस टू स्टडी अभी हमारे पास आएंगी तो वी वुड स्टडी अबाउट दैट। 1 जनवरी को ही हमने लॉन्च किया था। इसके अलावा वी हैव द इनसेट 3DS। इनसेट जो है ये एक तरीके के वी कैन से दैट कि दीज आर सम रडार सिस्टम एंड दिस सिस्टम इट हेल्प अस टू स्टडी द मेट्रोलॉजिकल मीन्स वेदर फोरकास्टिंग एंड द जियोस्पेसिंग एंड इस तरीके के स्टडी में ये जो है हमें हेल्प करता है। सो इसरो ने लॉन्च किया है मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट इनसेट 3DS। Feb 17 को हमने लॉन्च किया था, GSLV के थ्रू हमने ये लॉन्च किया था। तो मोस्टली क्या होता है इनसेट सीरीज के और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हैं वो हम थ्रू GSLV ही लॉन्च करते हैं, क्योंकि उन्हें हमें मीडियम अर्थ ऑर्बिट में या GTO में पहुंचाना होता है, तो इस वजह से उसके लिए हम GSAT ही बेसिकली GSLV का ही यूज करते हैं। सो जो मिशन है इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रूव द व्हीकल क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, क्योंकि अभी नासा और इसरो का एक निसार मिशन आने वाला है जो कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में आएगा। तो उसी के लिए टेस्टिंग के तौर पर हमने इनसेट 3DS जो है उसे लॉन्च किया था। सो दिस इज द इनसेट 3DS। नाउ वी हैड आल्सो लॉन्च द SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हमें हेल्प करता है कि क्योंकि हमें
कुछ सैटेलाइट लेके जाने, उसके लिए इतना हैवी हम जो है पेलोड लेकर जाए, दैट इज नॉट गुड। उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू इज कि हमें एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना चाहिए जो लेस कॉस्ट पर जो है हमारे पेलोड को, हमारे सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में पहुंचा दे। उसका अभी हमने जो है EOS-3 जो है 3rd नंबर का जो है अपना स्पेस फ्लाइट लिया था एंड वो भी हमने सक्सेसफुली किया। सो SSLV अब तक जो है 3 टेक ऑफ फ्लाइट ले चुकी है, जिसमें से फर्स्ट नंबर का सक्सेसफुल रहा था, सेकंड नंबर का अनसक्सेसफुल रहा था एंड द 3rd नंबर जो अभी हाल फिलहाल में हमने लॉन्च किया था वो भी हमारा सक्सेसफुल रहा। इसके बाद हमारे कुछ इसरो का एक रोड मैप है दैट कि हमें क्या करना है। We had announced a 25-year roadmap until 2024। हम गगनयान जो है वो तो लॉन्च करना ही चाहते हैं, साथ ही साथ में हम लूनार एक्सप्लोरेशन जो है वो करना चाहते हैं एंड वी वांट टू डू द इंडियन लैंडिंग ऑन द मून बाय 2040। These are some of the target। उसमें इसरो जो है वो तो काम करेगा ही, बट इसरो का जो प्राइवेट आर्म है NSIL, the New Space India Limited, this is also going to play a very important role। So now what we are going to do is we are going to study about the Gaganyaan and then some of the upcoming project of the ISRO। So Gaganyaan as the name suggests, हम in this space हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाना चाहते हैं जिनको हम व्योम मित्रास बोल रहे हैं। तो अभी तक हमने 4 पर्सन जो है उनको एज ए प्रोस्पेक्टिव पर्सन जो है नॉमिनेट किया है, ट्रेन किया है, सो दैट कि उनको स्पेस ट्रेनिंग दी जाए, जिसमें से 2 जो है अभी नासा के एक प्रोजेक्ट का पार्ट है एंड दे आर गोइंग टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये हमारा जो रोड मैप है विच वी आर थिंकिंग दैट हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो बिल्टअप करना चाहते हैं बाय 2035। अब जो गगनयान मिशन है, दिस गगनयान मिशन इज जस्ट ऑब्जेक्टिव कि हम एक टेस्ट फ्लाइट करें कि क्या हमारे पास प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर है कि 2035 में हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में जो है वो जा सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है हम हैवियर पेलोड को उठाकर लेकर जाएं, हम वो भी जो है टेस्ट फ्लाइट करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा NSIL मिशन जो है दैट इज ऑल्सो ऑन बोर्ड, नेशनल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है जिसमें हमारा आता है GSAT आता है एंड GSAT 20 वेरिएंट GSAT N2 सैटेलाइट, तो उनके ऊपर भी हम फोकस करने वाले हैं। दिस इज बेसिकली गोइंग टू प्रोवाइड अस सम सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ द स्पेस मिशंस कि इंडिया का जो स्पेस मिशन है दैट नीड टू बी इंडिजीनियस बिल्ड as well as that need to earn some money for us। Let me just tell you, in the last 1 year, India had provided its launching vehicle facility to 213 satellites of the world। अब क्या होता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट के लिए, सर्विसिंग के लिए हमें उनके सैटेलाइट को रिप्लेस करना पड़ता है। तो अब जब हम अपने लॉन्चिंग व्हीकल से अपने सैटेलाइट को लेके जाते हैं तो हम वहाँ, क्योंकि हम हैवी पेलोड कैरी कर सकते हैं इन द PSLV एज वेल एज इन द GSLV, तो उसमें हम अदर कंट्रीज के सैटेलाइट्स को भी लेकर जाते हैं और फिर उनको उनके ऑर्बिट में छोड़ देते हैं। दैट्स हाउ इसरो इज ऑल्सो अर्निंग सो मच ऑफ द मनी एंड यही हमारा जो है अपकमिंग टारगेट भी होने वाला है। So let me just tell you some of the detail about the NSIL because it is considered as the commercial arm of the space system। So NSIL ये एक public sector enterprise है। It is incorporated as a new commercial arm of the Department of Space। It is here to just tap the benefits of the R&D as well as it is going to harness the India's space power commercially because हमने ये देखा है कि commercially we can earn so much of money। इससे इसरो का जो इंडिपेंडेंसी है वो स्ट्रेंथन होगा बिकॉज नाउ इसरो इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पेस सेक्टर का जो बजट आता है उसके ऊपर। इसके अलावा वी आर ऑल्सो हैविंग द इन स्पेस। सो इन द लास्ट 3 years देयर हैव बीन सेवरल नोटेबल पॉलिसीज अपडेट्स हुई हैं और उसमें एक न्यू स्पेस रेगुलेटर आया है दैट इज द इन स्पेस। In space, what it is basically going to do is it release the moon, the norms, the guidelines, the procedure for the authorization of the space activities। Now what they are basically doing is
they had granted the country's first satellite broadband license to the OneWeb, and this had been entrusted them to on the 21st November 2023. They granted the first license for a ground station as a service, and it is being provided by the Dhruv Space on the July 15. Along with that, Government of India, they had amended the FDI regulation, and they had allowed 100% direct FDI in all the space and the space flight. इसके अलावा वी आर ऑल्सो फीलिंग लाइक कि अभी हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी चाहिए. फॉर दैट 74% सीलिंग हमने प्रोवाइड करवाई है. In that way, in this way, we can say that कि India is on the path of the self sufficiency, और इस self sufficiency के path में we are doing the good one. इसी के साथ जो है हमारा जो स्पेस सेक्टर है, वी आर फोकसिंग दैट कि 2035 तक हम अपना स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन जो है वो सेटअप करेंगे. ये हमारे लिए एक माइलस्टोन की तरह होगा. उससे हम सर्विसिंग एंड अदर वर्क जो है वो फुलफिल कर पाएंगे. हाल फिलहाल में सिर्फ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, एंड चाइना अपना स्पेस स्टेशन जो है वो भी इनबिल्ट कर चुका है, बट दैट इज नॉट प्रोग्रामेबल अभी के लिए. बट इन द कमिंग फ्यूचर ये सर्विस के लिए जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. सो इंडिया इज ऑन द सिमिलर लाइन एज जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं. इसरो जैसे इंडिपेंडेंट बन रहा है फंड बेस्ड सिस्टम में भी, तो वी कैन फील कि इन द कमिंग टाइम पीरियड हम बहुत अच्छा जो है वो अचीव करेंगे. सो देयर इज वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन, एंड इसको जो है आप लिख के शेयर कीजिएगा. You can share it in the comment section, as well as you can share it in the Telegram group as well. So this is the test series which we are launching, total 64 tests for the prelims and mains. You can access these tests at the affordable prices. Other than that, you can also access to the point current affair PDF at 29 rupees. So thank you so much for today. Thank you.